Hello students. In previous virtual session, we have discussed internal trade and types of internal trade, that is wholesale and retail trade. We have also discussed features of wholesalers and retailers. Now we are going to discuss types of retailers. First we will discuss one of the type of retailer, and that is itinerant retailers. The term itinerant retailers are those retailers who do not have a fixed place or fixed shop for their business. They move from one place to another. Such retailers are known as itinerant retailers. So now we will discuss one by one the various types of itinerant retailers. First one is hawkers. Hawkers are the one of the oldest types of retailers. They move from one place to another carrying goods in handcart, moving from the city or place anywhere where they can sell easily. They require limited capital. They move on street by shouting loudly or announcing the names and prices of the goods. They deal in seasonal vegetables, fruits and some other items like household cheap articles, bangles, clips, etc. तो हॉकर्स जिसको हम बोलते हैं फेरी वाला, हम जिसको ठेले वाला भी बोलते हैं, तो हैंकर्ड यानी यहाँ पे हैंकर्ड यानी यहाँ होता है ठेला. सो ये अपने ठेले में अपना सामान बेचते हैं और ये सामान बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में चीप आर्टिकल्स होते हैं. हॉकर्स को जो कैपिटल लगता है अपना बिजनेस करने के लिए, अपना ट्रेडिंग करने के लिए, वो बहुत कैपिटल लिमिटेड होता है, क्योंकि इनके हैंग कार्ड में जितना लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स माएंगे उतना ही वो खरीदते हैं और बेचते हैं. तो बेसिकली इनको लिमिटेड कैपिटल लगता है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अपने गुड्स बेचते हैं. सेकेंड टाइप इज पेडलर्स. Peddlers are the oldest form of retailers. Peddlers are those who carry goods on their head in basket or containers. They deal in low quality goods or of day to day use on cash basis such as vegetables, fruits, fish, utensils, soaps etc. So basically peddlers वो होते हैं जो अपने सिर पर कंटेनर्स या बास्केट कैरी करते हैं और उसमें अपने आर्टिकल्स कैरी करते हैं. क्योंकि ये बास्केट और कंटेनर्स ये अपने सिर पर कैरी करते हैं, तो ये लिमिटेड क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी गुड्स बेचते हैं और इनको कैपिटल बहुत कम लगता है अपना माल बेचने के लिए और ट्रेड करने के लिए. लगभग डे टू डे नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ये कैश बेसिस पे सेल करते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रीट ट्रेडर्स. These retailers do their business on footpaths of busy streets of cities and towns. They prefer crowded places like marketplaces, bus stops, railway stations, schools, colleges, etc. They set up temporary stalls on the roadside. They sell items like handbags, ready-made garments, toys, electronic goods, etc. Their prices of the goods are reasonable. They do not change their place of business frequently. तो स्ट्रीट ट्रेडर्स लगभग वो होते हैं जो फुटपाथ पे अपने शॉप्स, छोटे से स्टॉल्स रोड साइड एरिया में सेटअप करते हैं और ये सेटअप इनका टेम्पररी होता है. लगभग बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें इनके पास नहीं रहती हैं. रीज़नेबल प्राइस में ही अपने कमोडिटी सेल करते हैं और फ्रीक्वेंटली ये अपना बिजनेस का जो प्लेस होता है वो चेंज नहीं करते. बट इनका एम रहता है कि अच्छा सेल करना, तो मोस्टली क्राउडेड प्लेसेस में ये अपने टेम्पररी स्टॉल्स डाल के अपना बिजनेस करते हैं. देन अनदर टाइप इज चीप जैक्स. चीप जैक्स हैव इंडिपेंडेंट शॉप्स हैविंग टेम्पररी सेटअप. They keep changing places of their business depending upon responses they get from consumers. Chipjacks have a fixed shop for a particular period. They deal in variety of goods like cutlery, crockery, socks, shampoos, etc. The quality of goods is inferior. So ये चिप्स जैक्स जो होते हैं, तो ये स्ट्रीट ट्रेडर से यही डिफरेंस होता है कि इनका टेम्पररी सेटअप तो रहता है लेकिन ये अपना प्लेस ऑफ बिजनेस अपने कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सेस के हिसाब से चेंज करते रहते हैं.
इनका भी टेम्पररी सेटअप होता है और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये अपना शॉप एक जगह पे लगाते हैं, और वो पीरियड ख़त्म होने के बाद, कंज्यूमर का रिस्पांस कम होने के बाद में, ये वो अपना शॉप और सेटअप उठा के दूसरी जगह अपना बिजनेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट इज़ मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स open their shops on market days, on different places, on fixed days. Usually many villages and towns have some day of week known as market day. On that day, various retailers come and set their temporary shops at particular villages or town. They deal in various goods like vegetables, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garments, daily utensils, etc. It is ऑल्सो कॉल्ड एज वीकली मार्केट। हम जो हमारे यहाँ का हम आठवड़ी बाज़ार बोलते हैं, आठवड़ा यानी वीक। सो जो वीकली मार्केट होते हैं यानी सप्ताह में एक दिन को हम मार्केट डे बोलते हैं। तो इस दिन ये मार्केट ट्रेडर्स आते हैं और अपना माल बेच के चले जाते हैं। तो डे फिक्स होता है, वीक का एक दिन जो मार्केट डे होता है उस दिन ये अपना माल आके बेचते हैं, लेकिन इनका प्लेस जो होता है ये डिफरेंट रहता है। और बेसिकली ये छोटी चीज़ों में डील करते हैं जिसमें इनको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। सो जो ट्रेडर्स वीक में एक बार आके अपना माल बेचते हैं, ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको हम मार्केट ट्रेडर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे इटरेंट रिटेलर्स का जो 5 टाइप्स है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और अब हम देखेंगे फिक्स शॉप रिटेलर्स के टाइप्स। तो ये जो फिक्स शॉप रिटेलर्स है, पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे और फिर उनके टाइप्स देखेंगे। सो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स आर दोज रिटेलर्स who do not move from one place to another. They mostly have fixed places. They can further be classified into small scale fixed retailers and large scale fixed retailers. तो ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, मतलब ये अपना बिजनेस प्लेस या अपना बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह ये नहीं लेके जाते। इनका एक परमानेंट फिक्स सेटअप होता है शॉप का। अब ये जो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है इनको फिर से 2 क्लास में क्लासीफाई किया है, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स एंड लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स। सो पहले हम देखेंगे स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स के टाइप्स। They are again divided into 4 types: general stores, second hand goods shop, authorized dealers and specialty shops. तो पहले हम देखेंगे जनरल स्टोर्स। जनरल स्टोर्स retailers sell goods which are required by people for their day-to-day needs like food grains, soaps, stationery, medicines, oils, etc. These shops are generally situated near residential area of the city or town. They provide home delivery of goods. They have variety of goods in each item. They buy goods from wholesaler or buy directly from manufacturer. तो जनरल स्टोर्स ये मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया के आसपास में ही इनकी ये स्टोर्स होती हैं और ये वैरायटी ऑफ गुड्स हमको प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे गुड्स में ये डील करते हैं जो डे टू डे नीड्स के होते हैं। और बहुत सी बार ये होलसेलर से माल खरीद के फिर बेचते हैं, एंड समटाइम्स ऑल्सो दे परचेज और बाय द कमोडिटीज़ और गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। तो बहुत सी बार मैन्युफैक्चरर से भी खरीद के फिर ये बेचते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेकेंड हैंड गुड्स शॉप। These retailers purchase and sell used goods. For example, they deal in books, furniture, TV sets, cars, etc. After repairing goods and setting them in working conditions, the goods are sold to the consumers. Generally, consumers from weak financial background purchase goods from them. As prices of these goods are cheap, they lack quality, durability and guarantee. तो सेकेंड हैंड गुड शॉप में ऑलरेडी यूज्ड गुड्स का सेल किया जाता है। तो ये रिटेलर्स ऐसे ऑलरेडी यूज्ड गुड्स पहले ख़रीदते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और उसकी वर्किंग कंडीशन ठीक करने पर, मतलब वो गुड्स यूज़ करने लायक जब बन जाते हैं तो उनको कंज्यूमर्स को बेच देते हैं। तो लगभग इनके वो ये कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं या इनके कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं, वो ऐसे सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं।
एंड ये ऐसे गुड्स होते हैं जो प्राइजेज़ में कंपैरेटिवली इनकी प्राइस चीप रहती है, पर इनकी ड्यूरेबिलिटी यानी ये गुड्स टिकाऊ कम रहते हैं और ये गुड्स की गारंटी भी कम रहती है, और साथ ही में इनकी क्वालिटी भी कंपैरेटिवली लो क्वालिटी रहती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑथोराइज्ड डीलर। These retailers have authorized dealership of particular manufacturers' goods. They deal in goods like TV sets, washing machines, automobiles, music systems, etc. Authorized dealers try to maximize sale of goods because they get good commission from the manufacturers. Authorized dealers do not have products of other manufacturers except for whom they are working as authorized dealers. They promote the goods by window display, एडवर्टाइजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स। तो ऑथोराइज डीलर्स वो रिटेलर्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से डीलरशिप लेते हैं और उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स ही वो बेचते हैं। लगभग इनको गुड कैपिटल लगता है क्योंकि ये जो कमोडिटीज़ में डील करते हैं वो कमोडिटीज़ महंगी होती है और सुपीरियर क्वालिटी की गुड्स होती है ये। सो ये ऑथोराइज डीलर को कैपिटल बाकी रिटेलर्स के कंपैरिजन में हाई कैपिटल लगता है, ह्यूज कैपिटल लगता है। टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, म्यूज़िक सिस्टम ऐसी चीज़ें ये बेचते हैं और इनका मेन मोटिव होता है कि मैन्युफैक्चरर का जो प्रोडक्ट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होने पर ये कमीशन भी कमाते हैं। तो ऑथोराइज डीलर का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कमीशन होता है जो इनको मैन्युफैक्चरर से मिलता है। तो ये ऑथोराइज डीलर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये उन्हीं मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट बेचते हैं जिनके ये ऑथोराइज डीलर होते हैं। तो मेनली ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं कमोडिटीज़ की, विंडो डिस्प्ले करते हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स देके और डिस्काउंट ऑफर देके ये अपने प्रोडक्ट का सेल करते हैं और कमीशन एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशलिटी शॉप्स। These retailers deal in a particular line of goods. They keep a wide variety of item of same line of the product. For example, a toy shop may keep only toys of different types. Other examples of specialty shop retailers are sports material, ready-made dresses, etc. They offer goods at varying price range. They provide a wide choice to the customers. They give advice to the customers as they have expert knowledge about the product. तो ये स्पेशलिटी शॉप रिटेलर्स जो होते हैं इनके पास में एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। ये सेम लाइन प्रोडक्ट की बहुत सारी वैरायटी आइटम्स अपने पास रखते हैं। जैसे कि मान लो टॉयज़, तो टॉय की डिफरेंट वैरायटी इनके पास रहेगी, स्पोर्ट्स मटेरियल की डिफरेंट वैरायटी इनके पास रहेगी, रेडीमेड ड्रेसेस की वैरायटी इनके पास रहेगी। तो ये वराइंग प्राइस यानी चेंजिंग प्राइस रेंज में ये लोगों को अपने गुड्स बेचेंगे। कंज्यूमर्स के पास में बहुत सारी चॉइस के ऑप्शंस रहेंगे इन स्पेशलिटी रिटेलर्स के, और इनकी खासियत ये रहती है कि ये बहुत इनको एक्सपर्ट नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कंज्यूमर को हमेशा अच्छा नॉलेज देते हैं, एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। बट इनकी खासियत ये होता है कि वेरिंग प्राइस रेंज इनके पास में होती है, डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट प्राइजेस होते हैं। सो यहाँ पर स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स के टाइप्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स के टाइप्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।